So, hello everyone, and welcome back to my YouTube channel, Best Pharmacy Tips and Tricks. And today with us, a extremely special guest. Guest से ज्यादा मैं करूंगा मेरा बहुत ज्यादा close friend अमय गावस्कर is there. So, उनके बारे में जितनी तारीफ करूँ उतना कम है. He has got GPAT All India Rank 01. So, congratulations first of all, Mr. Amay, for that. And secondly, I would like to express my heartfelt gratitude for joining into this interview. And also, I have seen him participating, like we have met before and we have participated in a lot of competitions as well together. And it was so good to see him grow. And मतलब हमको पता था कि हमारा होने वाला है GPAT and but All India rank 1. So Amay, how's the feeling first of all? Totally good. And first of all, thank you, Payam, for inviting me to your channel. And it's an honor to be with you because we both have participated in many competitions and I have observed you closely myself. So that's always great. Thank you for inviting me. Right. So, viewers, as per the thumbnail, you can see that today's session is about how did he crack GPAT, his strategy, and what are the important tips that he can give towards aspirants. So, first segment is a Q&A segment. So, Amay, shall we begin with the same? Yes, done. Yeah. So, the first question and the most common one, how many hours Hmm. did you study when college was Hmm. working and jab holidays tha tab? So, your Hmm. work plan, basically. ओके सो एक्चुअली जो स्टडी था वो कभी भी आवर्स में नहीं होता था. इट वाज Okay. ऑलवेज कंटेंट में कि आज ये डिसाइड किया है कि आज ये पर्टिकुलर चैप्टर करना है सुबह उठकर तो वो कंप्लीट. अब उसमें 1 घंटा भी लग सकता है या फिर 8 to 10 hours भी. सो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स. Okay. So viewers, one important point that he mentioned, जो सारे एस्पायरेंट्स को याद रखना चाहिए, आपका कंटेंट मैटर करता है, आवर्स नहीं. आप अगर 10 घंटे भी बैठ रहे हो लेकिन अच्छे से कोई चीज नहीं कर रहे हो, so वो 10 hours are procrastinated. So thank you, Amay, for that. Moving on to the next question. How did you या balance your semesters and your GPAT preparation? Because दोनों में काफी like GPAT में all 4 years का syllabus is to be studied. So how did you manage that? ओके सो जीपैट की मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन इन 4th सेमेस्टर Okay. स्टार्टिंग विद द बेसिक्स. तो 4th सेमेस्टर में सबको ऑलमोस्ट फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी इंट्रोड्यूस होता है सब्जेक्ट्स. सो तब जो है इफ यू ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है कि वो जीपैट के और सेमेस्टर के टिल 6th और 7th सेमेस्टर वो सेम होते हैं. जैसे फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री. तो जैसे उस सेमेस्टर में आप हो तो उस सेमेस्टर में सेमेस्टर का प्रिपेयर करो और एट द सेम टाइम जो फार्माकोलॉजी मेडकेम जो साइमल्टेनियसली चल रहा है जीपैट के लिए व्हाट यू रिक्वायर मेक सेपरेट नोट्स तो जिससे आप उसका साइमल्टेनियसली कर सको. सो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग बोथ एज डिफरेंट ट्रीट बोथ ऑफ देम एज सेम सो दैट वो साइमल्टेनियसली हो जाता है और वो प्रेशर भी उतना ही रिड्यूस होता है. Okay. Thank you for that answer. Next question. Like many a times जब हम prepare करते हैं 1 साल से 2 साल से, so एक point आ जाता है when you get saturated. So how did you deal with that? जब आप low feel करते हो, जब आप demotivated होते हो, so how did you keep that up? Like आपने कैसे अपना encouragement रखा? Hi. ओके सी सैचुरेशन तो आने वाला है. लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 to 2 years सैचुरेट सभी होते हैं. इट्स नेचुरल. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट अगर सैचुरेट हो रहे हो जस्ट टेक अ ब्रेक. 1 day टोटल रिलैक्स करो. उस दिन कुछ मत पढ़ो. होगा ये फीलिंग बहुत बार आएगी. टेक अ ब्रेक. समटाइम्स फॉर 1 to 2 hours का ब्रेक ले लो. समटाइम्स एक पूरे दिन का ब्रेक ले लो. गेट डिटैच्ड. कोई भी आपकी जो एक्टिविटीज है सो जैसा मेरा था कि मैं मुझे मूवीज पसंद है बॉलीवुड के. शो में मूवीज देखता था या फिर कोई भी ट्रैक पर जाओ नेचर के साथ कनेक्ट करो. अगेन कम बैक स्टार्ट अगेन. Great, great. So basically he meant to say that आपको कोई भी अपने recreational activity जो आपको पसंद है वो कर. So I hope aspirants यस. this helps you all. And moving on to next question, Amay. What are the things that an aspirant should avoid while preparing for GPAT? मतलब ऐसा बहुत लोग होता है कि उसने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन उसको कुछ नहीं आया. So any tips for smart work rather than extreme level का hard work? Any tips for that? ओके सो सबसे पहले अगर जीपैट की सिलेबस कॉपी खोलोगे तो इट्स 54 पेजेस. बहुत Right, ज्यादा बड़ी होती है. वही किसी को भी हार्ट अटैक देने में सफिशिएंट है. correct. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 54 पेजेस की सिलेबस कॉपी है लेकिन
ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सारे उन 54 के 54 पेजेस के सिलेबस कॉपी से पूछेंगे। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे जूरिस्प्रूडेंस है तो उसमें सिलेबस कॉपी देखोगे तो 18 दिए हुए हैं चैप्टर्स, बट Okay. हर साल जो क्वेश्चन आते हैं दे आर ऑलवेज आइदर ऑन फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या फिर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक्स। सो Okay. व्हाट वी हैव टू डू हियर इज दैट पहले हमेशा वो टॉपिक्स कंप्लीट करने जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। और वो पता कैसे चलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, उससे आपको पता चल जाएगा। ऑलवेज कंप्लीट दैट और उसकी कंटिन्यूअस रिवीजन करो, और फिर जो माइनर वाले टॉपिक्स है वो करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस वैसे बहुत कम है करने का, बट दैट्स द स्पेसिफिक सिलेबस दैट यू नीड टू डू फर्स्ट। और वो किया तो फिर द प्रोसेस इज सिंपल। ओके एंड लास्ट क्वेश्चन, बट ये बहुत सबसे ज्यादा आया है मुझे डीएम्स में, मुझे चैनल पे, एंड बिकॉज दे केम टू नो दैट आई नो यू, सो दे हैव टोल्ड मी स्पेशली टू आस्क यू कि अमय आपने सेल्फ स्टडी की थी या ग्रुप स्टडी की थी, बिकॉज वो लोग ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं और वो लोग को डर है कि कहीं पढ़ाई उनकी मिस ना हो जाए। सो व्हाट स्टडी विल यू प्रेफर, ग्रुप स्टडी और सेल्फ ओके, स्टडी? सो मैं तो सेल्फ स्टडी वाला था। एक्चुअली ग्रुप स्टडी भी मैंने ट्राई की थी, बट इट्स लाइक ग्रुप स्टडी हमेशा वो मैक्स टू मैक्स मेरी 30 मिनट चलती थी, उसके बाद इट वाज ऑलवेज टर्न्ड इनटू फन। सो राइट। मैक्सिमम टाइम्स इट वाज मेरी सेल्फ स्टडी। बस बहुत बार जब क्विजेस में पार्टिसिपेट करता था तो उससे पहले जो भी मेरी टीम है उससे जस्ट 1 डे बिफोर ग्रुप स्टडी करता था, नहीं तो मैक्सिमम 90 to 95% टाइम्स इट वाज सेल्फ स्टडी। Okay, okay, okay. So moving, thank you so much for those answers. Moving on to the next यस। session, the next segment, that is rapid fire. So I'll be asking you 5 questions and you will have to answer them in 15 seconds if that's possible. Okay. ओके So firstly, ओके। first question, most scoring subject of GPAT. फार्माकोग्नोसी। Okay. 3 important tips that as a GPAT aspirant one must remember. फर्स्ट इज ऑलवेज मेंटेन कंसिस्टेंसी। ऐसा एक भी दिन मत गवा कि तुमने पढ़ाई नहीं की। फर्स्ट कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, दैट्स द सेकंड वन, एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। Okay, that's lovely. Next question. Which is a subject that they should start preparing? मतलब when they are beginning GPAT preparation, कौन से subject से start करना चाहिए? फिजिकल फार्मेसी एंड फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज वो Okay. 4th सेमेस्टर में होते भी है। Okay. Next question. The best points for revision. एक बार study हो जाए, syllabus हो जाए, revision कैसे करें? Best points for revision. बेस्ट पॉइंट्स आर लाइक ऑलवेज यू हैव टू फर्स्ट डू जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही हमेशा पहले करने हैं और इसके पहले लाइक 1 मंथ बिफोर छोड़ दो सब, बस रिवीजन करो। Okay. And the last question. What is the best time to solve MCQ? Is it during preparation, after preparation, or both? ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब भी एक दिन में एक चैप्टर लिया वो कंप्लीट किया, इनामदार ले लो, प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व कर दो। Okay, okay. So that's it from the second segment. I hope viewers, you would all have gained a lot of knowledge from Amay, and knowledge से ज़्यादा inspiration लिया होगा, because he used to participate in poster, quizzes, so many different competitions. So I want you all कि तुम लोग सिर्फ पढ़ाई पे भी ना ध्यान दो, जैसे he is overall development भी जरूरी है. And secondly, Amay, I would like to really thank you for devoting your time over here for this session and joining in. If viewers, you all have any doubts, please feel free to drop them in the comment section. We'll try to answer them. Amay, any last tips that you would like to give or anything that you would like to say before we end the session? एक टिप जो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट इज ऑलवेज मेंटेन कंसिस्टेंसी, और दूसरी जो है आपका जो भी ग्रुप सर्कल होगा वो हमेशा मोटिवेटेड रहो। तो मेरे पास एज यू कैन सी द वन हु इज कंडक्टिंग द सेशन, पायम, मैंने उसके साथ बहुत क्विजेस में पार्टिसिपेट किया था और हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्ड भी बना था। सो ऐसा हमेशा दोस्त रखो जो कि आपको मोटिवेट करेंगे और उससे आप इंस्पिरेशन लो। तो पायम पर्सनली वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे इंस्पिरेशन थे। So thank you for inviting me to your channel. Thanks. Okay. So thank you so much, viewers. Do like, share, and subscribe our YouTube channel.